नमस्ते दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और मैं आपके बीच आज एक खास शख्सियत यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और जो शख्सियत हमारे बीच आज यहाँ मौजूद है, ही इज अ केमिकल इंजीनियर और उन्होंने 26 साल का अपना एक्सपीरियंस लेने के बाद 2009 में अपनी इंडस्ट्री शुरू की और आज उनका नाम सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में भी बहुत चर्चित है। 2009 में उन्होंने सीमेंट ब्लॉक, 2011 में फायर प्रिवेंशन और 2016 में सेफ्टी एपरेटस निगडित इंडस्ट्री शुरू की। उनके बिजनेस पार्टनर और उनके लाइफ पार्टनर जिनका नाम है अवनी, और सोशल मीडिया बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे BNI, वहां पर भी वो बहुत सक्रिय हैं। सोशल वर्क में अगर मैं बताऊं तो रोटरी जैसे वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर जो वाइब्रेंट गोवा हुआ था, आप उसके को फाउंडर हैं। और अभी जैसे मैंने कहा BNI में आप काफी सक्रिय हैं। उन्हें दोबारा उनके चैप्टर का प्रेसिडेंट पद दिया गया ताकि वो फिर से एक बार उस जीवन को जी सके जो उन्होंने पहले भी उनके प्रेसिडेंट टर्म में दिया था। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अरमान जी बैंकली। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू वेरी मच अखिल जी। सर, जैसे कि मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके बारे में जाना और जो आपका काम है, आप बड़े इंडस्ट्रीज को उनके प्रोजेक्ट टाइम पर खत्म करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन्हें सभी जन एज अ हेडेक क्यों लेते हैं शुरुआत में? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं अखिल जी, बेसिकली माय लाइफ हैज ऑलवेज बीन वेरी पैशनेट अबाउट वर्क एंड थोड़ा born and brought up in a गुज्जू family, so वो business is totally like in blood, like 24 hours 24/7 business तो रहता ही है दिमाग में. But in that way, if you see what I have passed on through all these years, if you see my journey from 1993 after finishing my chemical engineering till 2007, I was in a partnership company and I was working, and then I differentiated myself and had started my own company also. And from that point of time onwards, it was my one unit only while processing of manganese ore minerals. Then gradually, after meeting Dr. Jagat Shah, who is my business coach and mentor, after in 2014 onwards, so that time the whole mindset was changed and I started working more for diversifying my things. I never wanted to depend on one product because at that time my mining business got affected with mining closures in Goa. So we had to look for some alternative. I had more than 100 people working with me. I did not wanted them to leave. So basically I wanted some alternative source of income for me as well as the work from them and all. So that is how even my cement products came up. And then gradually I built up in that from one product to 10 products in that, and gradually to other factories and all. So by that time, from 1993 till today in 2020, in my 26-27 years of business life, I have grown up to 8 factories now. So that whole mindset has been of being so passionate about business and being in the business. Once you are into the business and making one own, putting a whole forte of a circular economy. Basically what I have tried to do is whatever is my raw material to one factory is a finished good to another. So like that I have kept on the whole circular economy going on. Means one of my factory product is the raw material to my another factory. So that way comparatively the whole circular economy of that. So 50% of my production has always been taken care within the group companies only, and balance if required and excess capacity and all we have been supplying to outside. So ultimate aim is that unless and until you have that passion and all, then nothing stops you. So for me also, that is only one of the main reason that nothing else stopped me. Like I kept on going because of that passion and forte of mine that I want to do it all this into, and I kept on doing it. And that is how with God's grace today what I am. ये बहुत सही कहा आपने कि अगर हमें कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करना है या लेना है या सोचना भी है, तो एक पैशन, एक माइंडसेट क्रिएट कर लीजिए कि यस, मैं ये कर सकता हूँ। तो वो जो हेडेक वाला पार्ट है वो आपके लाइफ में नहीं आएगा। तो समथिंग लाइक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो माइंडसेट आप डेवलप कर लीजिए।
तो सर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आप आपके प्रोजेक्ट सेट टाइम में डिलीवर करते हैं? क्योंकि ये आपकी एक यूएसपी है कि अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप सेट टाइम में उसे कंप्लीट करते हैं। तो व्हाट इज दैट वन थिंग बिहाइंड दैट? Again, it I would relate the same thing because it was a passion to do that thing that led me. So it is nothing doing. And my one more forte is that I don't think much before entering into it. कुछ भी चीज में अगर करना है तो पहले एक बार समझ लो कि स्विमिंग पूल में कूद लिए हैं, फिर तैरना सीखते हैं। जो होगा वो तो देखो, बिजनेस में अगर सब पेपर पे ठीक ठाक करने के चालू करने की कोशिश की तो वो कभी टाइम पे होता ही नहीं। उससे अच्छा जस्ट enter into it and keep on flowing with the flow. You never know what is expected tomorrow, but I am sure, और मेरे touchwood मेरे को भी इतना कभी दिक्कत नहीं आया, and the things went on and on. So अब उसका जब कुछ प्रॉब्लम आया भी है, और आता ही है, वो तो कोई ऐसा है ही नहीं कि नहीं आता है, बट उसका कहीं ना कहीं उसका जो भी इलाज ढूंढना है, हल ढूंढना है और आगे बढ़ना है. So that has really helped me, means just jumping into it and then learn how to swim. मतलब हम हमारे पेपर पे सब कुछ सोचेंगे कि हाँ 100% परफेक्ट होगा तभी उसे शुरू करेंगे। उससे अच्छा शुरू कीजिए, आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी और आप उसमें से अच्छा बाहर निकाल लेंगे। मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल में आपने कहा था जो डेलीगेशन है वो बहुत अच्छे से आपके लिए वर्क करता है। अब उसके लिए मेरा एक सवाल आपको है कि अगर कोई पर्सन, कोई सामने वाला इंसान आपके बताए अनुसार काम नहीं करता है, आपने उसे डेलीगेट कर दिया लेकिन वो काम उस हिसाब से नहीं कर रहा है, तो वहां पर आप क्या करते हैं? Yeah, that is also again definitely delegation is one of the very key factor, and that is all hats off to Dr. Jagat Shah, जो उन्होंने मुझे सिखाया the value of our time. Basically, unless and until we don't understand the value of 1 minute of ours and we don't delegate that to this, और वो सब काम हम सोचते हैं कि हम ही करते रहें, और बाद में अल्टीमेटली हमको उतना टाइम दे नहीं पाते उस चीज के लिए, और वो काम वो स्पीड में हो नहीं पाता. तो वहां से ही मैंने ये सीखा हुआ है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू हायर पीपल एंड हायर फॉर एटीट्यूड, जो उन्होंने सिखाया है. तो आज मैंने उनके थ्रू ही और वाइब्रेंट गोवा से काफी सीख के, आई हैव माय ऑफिस वाज 7-8 years before I had only 2 staffs. Now today I have 20 backup staff, office staff. So basically I have kept on expanding with the office staffs also, so that I know that if that is a thing. अभी मेरा एक्सपोर्ट मुझे जोरों शोरों में शुरू करना था, पर मैं एक्सपोर्ट में और आगे बढ़ने से पहले मैंने एक्सपोर्ट के लिए 2 स्टाफ रख दिए, उनको सारा ट्रेनिंग जो देना था वो दे दिया. सो अल्टीमेटली दे बिकेम माय हैंड्स. मैंने भी सारा सीखा हुआ है, लेकिन मैं सीखने के बाद आई वाज नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था उतना. जो नॉलेज ज्ञान लिया था, लेकिन इम्प्लीमेंट करना या मार्केट रिसर्च करना वो सब नहीं होता. तो सेम वे जब मुझे 2 एडिशनल हाथ मिल गए तो वहां मुझे वो काफी इजी हो जाता है. एंड फॉर मी देन इट बिकेम वेरी इजी जस्ट टू फॉलो अप एंड टेक द नॉलेज. सो डेफिनेटली व्हाट आई हैव लर्नड इज कि हायर पीपल फॉर एटीट्यूड. तो मैं आज, मुझे कोई भी बंदा अच्छा लग गया, अभी आप मानेंगे नहीं, मैंने अभी आई हैव हायर्ड अ पर्सन हु इज एडवोकेट बाय प्रोफेशन, लर्निंग बाय एडवोकेट, बट उसको पैशन अच्छा था. मैंने उसको I took it in my office as an admin, this thing, and HR and all. But then I could understand she has very good knowledge and she has passion to learn new things. मैंने उनको एक्सपोर्ट सिखा दिया. आज वो सारा मुझे एक्सपोर्ट है. लास्ट उन्होंने मेरे को 4-5 महीने से ही खाली वो मेरे साथ है. आज she has been able to give me 4 new countries of work. So एक बार दिया है तो अब एडवोकेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज एक्सपोर्ट की फील्ड में she is helping me a lot, and the way I want, she has mastered into that. So this is how it really helps, that you hire it again, jump into the person whom you feel that he confidence that person can do it, and then you train them. See, ultimately training is most important. So by God's grace, I have been getting good people around me also to support. So that is how it goes through. And definitely time to time review and time to time recognition is what we have learned from BNI, has to be implemented everywhere. Yeah, that's true. मतलब डेलीगेशन में हम सामने वाले के एटीट्यूड के हिसाब से हम लोगों को अगर हायर करें
तो वहां पर हम देखते हैं कि उनका काम करने का तरीका बहुत शानदार होता है और हमारा जो वर्कलोड होता है वो डिवाइड हो जाता है। और पे फॉर एटीट्यूड कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिला एंड दैट इज रियली ट्रू थिंग, क्योंकि अगर हमारा लोड कहीं पे कम हो गया तो हमें जहाँ कहीं भी आगे बढ़ना है हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। सर, ऑडियंस से हमारे बीच में एक सवाल आपके लिए आया है कि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या बड़ा कोई काम हम शुरू करते हैं, तो जैसा आपने कहा कि शुरुआत में तो आपको पैशन है, आप सोचते हैं कि हाँ मैं ये करूंगा और आपको बहुत पैशन रहता है, लेकिन शुरू करने के थोड़े दिनों बाद वो पैशन, वो एंथुसियाज्म डाउन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपके लाइफ में नहीं होता होगा बाय गॉड्स ग्रेस, लेकिन अगर होता है तो क्यों होता है और उसे कैसे टैकल किया जाए, उसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें। नहीं, सबकी लाइफ में होता है, डेफिनेटली मेरे लाइफ में भी होता है। अभी जस्ट वन ऑफ माय प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, वो चालू करना था, सिर्फ 2 महीने का काम था, लेकिन चालू करते करते हमको 8 महीना चला गया। तो काफी दिक्कतें आई स्टार्टिंग में, एंड मैं भी काफी, तभी वाइब्रेंट को अभी पैरेलल चालू था, तो आई ऑल्सो कुड नॉट डिवोट द टाइम, बट देन आई हायर्ड अ राइट पर्सन एंड ऑल दैट फॉर इट। मीन्स उसको टाइम टू टाइम रिव्यू होते रहा, एंड उस पे जो वर्क करना था वो करते रहे। फोकस कभी भी हार छोड़ना नहीं है, यानी बेसिकली हारना नहीं है। मेरा तो ऑलवेज एक चीज मानना है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हारना नहीं है। ऑटोमेटिकली कहीं दिक्कत तो आने वाली, आप कुछ भी करो, एकदम पेपर में सारा पिक्चर अच्छा बना दो और प्रोजेक्ट चालू करो, तो भी अपने को कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आते ही रहने वाली है। सो इन फैक्ट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, जस्ट जंप इनटू इट एंड लेट द फ्लो गो ऑन, यू विल इजीली एबल टू एस्केलेट। और आज तो अभी हमारे पास बहुत सारे टूल्स है, बिजनेस कोचेज है, बीएनआई सपोर्ट में है, ऐसे बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट्स भी है जो हमको काफी गाइड कर सकते हैं, या पीपल हु आर देयर who are out of the way helping you to grow yourself. So you should take help of those people also, and only thing is keep that positive frame of mind. Just if kahin everything is in mindset, agar एक बार दिमाग से निकल गया, हार गए दिमाग से, तो फिर वो उठ पाना मुश्किल है। यानी दिमाग से हारना नहीं है और हारने देना नहीं है। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव। और मुझे इस बात में एक जवाब मुझे मिल गया है जो मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूँ। सर ने क्या कहा, उनका भी एक प्रोजेक्ट जब डिले हो रहा था, उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि एंथुसियाज्म कहीं कम हो रहा है, उन्होंने एक परफेक्ट बंदा हायर कर लिया और वो एंथुसियाज्म क्रिएट कर लिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा किसी न किसी को हायर करेंगे, लेकिन वहां पे एक छुपा हुआ जवाब मुझे ये मिला है कि उस प्रोजेक्ट में आपका जो एंथुसियाज्म डाउन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और वहां पर एंथुसियाज्म कैसे डेवलप हो सके वो चीज ऐड ऑन कर दीजिए। हो सकता है वो कोई मटेरियल हो, कोई स्टेटमेंट हो, कोई कोच की ट्रेनिंग हो, या फिर आपका अपना माइंडसेट हो। उस एंथुसियाज्म को वापस कैसे लाया जाए, इसके ऊपर आप काम कीजिए और देखेंगे कि आप फिर से एक बार उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाएंगे। तो सर हम Basically आपसे that only, inducing the new energy at the right time, means again when we understood that it was a problem, so and I was not able to give the time and all, so that is why I have actually just induced a new energy into it and have been able to get it into it. So that is what I really would like to say, that it should happen like that. सर हमारे बीच में एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो ऑडियंस ही आया हुआ है, और वो क्वेश्चन ये है कि जो कि मैंने आपका सारा डेटा और सोशल किया था कि मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन मेरे बीच में आया कि आप एक्सपोर्ट में भी हैं, और क्योंकि आप एक्सपोर्ट में हैं, अलग अलग कंट्री से आपको काम करना पड़ता होगा। तो ये जो इंटरनेशनल टाइमिंग्स हैं, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना वर्किंग टाइम होता है, तो हाउ यू मैनेज, क्योंकि आपको इंडिया में भी काम करना है, आपको बाहर के देशों में भी काम करना है, तो हाउ यू मैनेज योर टाइमिंग इन डीलिंग विद नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस। Definitely it takes a lot, like अभी being into business is like punishment only। सुबह 6 बजे तो जो काम पे लग जाते हैं, समझ लो रात को 10 तो बजते ही हैं, 10-11 भी बजते हैं। So basically yes, being into that different time zones, because और मेरा जो business है वो फार ईस्ट में वियतनाम वगैरह से भी है, और ये साइड वेस्ट में अफ्रीका तक है। सो डेफिनेटली सुबह वियतनाम वाले सुबह 6 बजे से मैसेजेस चालू हो जाते हैं, और अफ्रीका वाले रात को 9-10 बजे ये होता है। तो डेफिनेटली दैट टाइम गैप इज मोर, वेयर वी हैव टू गिव more time to it. But now with technology, to be very honest, the things are very, very easy.
आजकल अभी फोन पे ज्यादा बातें करनी भी नहीं पड़ती उतनी जितना व्हाट्सएप से काम हो जाता है, व्हाट्सएप और ईमेल से काम हो जाता है. सो दैट वे by God's grace at least those things are quite helpful where we don't really have to be much worried about. और बाकी जो मेरा मिनरल्स और वो है वो बेसिकली क्वालिटी सैंपल्स में वो सब पे डिपेंड रहता है, तो वो सारा एक बार जो सेट हो गया रहता है तो थिंग्स आर क्वाइट स्ट्रीमलाइन एंड दिस, सो वी डोंट हैव टू देन बॉदर मच. खाली इट गोज ऑन अ रिपीट ऑर्डर और दिस एक स्टार्टिंग में जो टेक्निकल टाइम या डिस्कशन वगैरह में जाता है, but once it is there then it becomes quite streamlined, so it never is a problem then. Yeah, but you have to, and ultimately business is, I would always say any business is 24/7. वो करना पड़ता है एक एक बार, you can't help it, you have to give time and accordingly to them. लेकिन सर दिन भर जैसे आपने कहा सुबह 6 बजे भी आपको देना पड़ता है, 10 बजे भी आपको देना पड़ता है, तो हाउ यू डेवलप दैट मच एनर्जी? कहाँ से आपके अंदर वो एनर्जी आती है कि आप ये सारा करते हैं? Yeah, that is touchwood also. That is again like I am an ardent follower of Sri Sri Ravi Shankar ji, Art of Living and all. So from 2001 I have been regularly following Art of Living and has been going into yogas and meditations and all that. So that has also always helped me a lot. That gives definitely an extra energy and all. So everybody needs something or the other sort of this type of, so those Sudarshan Kriya and all what we follow through this Art of Living and all, it is part of it and we have to carry on it. So and that really gives a good booster to the life. तो ये बहुत ही सही आपने यहाँ पर कहा कि आपकी एनर्जी को आप मैनेज कीजिए और जहाँ-जहाँ आपको टाइम देना है वहाँ-वहाँ अच्छे से टाइम दीजिए. नथिंग इज इम्पॉसिबल. आज हम देख रहे हैं अरमान सर को, उन्होंने 26 सालों की जर्नी में आज सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया में वो अपना नाम कमा रहे हैं और ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया है, अपने एनर्जी को मैनेज किया है और हर चीज के लिए वो पैशनेट है. आप देख सकते हैं मैं जब सवाल पूछता हूँ वो जवाब देने के पहले मुस्कुराते हैं. तो ये जो पैशन है ये अंदर से आता है. हमें भी हमारी लाइफ के लिए पैशनेट बनना है, जो भी करना है दिल ठोक के करना है, बस जी जान लगा के करना है. थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस. हमें बहुत कुछ आपसे लेने को मिला और ये जो स्माइल आपकी है इसे मैं चुरा रहा हूँ, ये मैं कभी भी अपने चेहरे से नहीं उतरने दूंगा. एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ और आपके द्वारा सभी को ये चीज बताना चाहता हूँ कि मैं टाइम मैनेजमेंट पर एक बुक लेकर के आ रहा हूँ और बुक का नाम है समय नहीं है क्वेश्चन मार्क. इस बुक को मैं नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक में मैं लॉन्च करने वाला हूँ. उसमें 100 ट्रिक्स मैं वहां पर शेयर करूंगा कि कैसे आप समय जनरेट कर सकते हैं. 100 क्वेश्चंस के 100 आंसर्स और हर क्वेश्चन वहां पर सॉल्व किया जाएगा जो भी अभी तक मेरे क्लाइंट्स ने मुझे पूछा है. तो वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करके उनकी एक बुक में लेकर के आ रहा हूँ. तो आपके द्वारा मैं चाहता हूँ कि सभी तक ये बात पहुंचे. और दोस्तों जो हमने वादा दिया था बड़े प्रोजेक्ट कैसे आप हैंडल करें, कैसे आप टाइम पे खत्म करें, उसका जवाब हमने दे दिया है. ऑडियंस की तरफ से एक और हमें कहा गया है कि हमें जहां दिक्कत आ रही है वो है ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोटेक्शन. तो उस टॉपिक पर बात करने के लिए अगले वीक हम आपके सामने एक एडवोकेट और सीएस उनको लेकर के आ रहे हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि ब्रांड एस्टेब्लिश्ड एंड प्रोटेक्शन करने में ज्यादा समय नहीं लगता, आप आराम से कर सकते हैं. चलिए इस इंटरव्यू का यही एंड करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद अरमान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें टाइम देने के लिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, Akhil ji. It was pleasure being with you all. Thank you. Thank you, sir.